preschool class to grade 3 in the form of Lakshyas. Nishtha 3.0 program for Nippon Bharat ensures the training of over 25 lakh pre-primary and primary teachers across India. They are being trained on how to make education fun with play for effective and hands-on learning of children. Vidya Pravesh, a 3-month play-based school preparation program, prepares children for formal learning at schools in Class 1. Early education ascertains overall development of a child, be it cognitive, intellectual, speech and language, or social and emotional. Today's children are tomorrow's adults, with potential to pave powerful path for their nation's progress. That is how India is shaping up a strong foundation for a stronger future. Thank you, ma'am. Thank you, Suruchi ma'am. So my question goes to everyone, and especially the primary department. What is the elaborate full form for Nipun? Nipun Bharat. Anyone from the primary department can contribute, and there is a slogan, a tagline along with it. That also you should share. Anyone? If our secondary and senior secondary are also aware of it, they can also share, because definitely the concern goes here that when the workshop caters to an audience which is beyond primary, then they must be wondering what's in there for them. So my dear colleagues, as we are members and we are somewhere heads of different subject committees, and we must be apprised of all the new innovations which are coming in the education sector, especially for the foundation classes. And it's said that only what we know we can apply. So as torch bearers for the foundation, let's have some idea about the innovations being done at the foundational level, and we can apply the same in our practical life with our own family and kids as well. So anyone, for what's the full form for Nipun? Yes, Sakshi ma'am, you're there. I believe Priyanka ma'am has not joined. They only helped me out with the idea about these Nishtha programs. Anyone? Urvashi ma'am is there. Reena ma'am. Poonam ma'am. Yes, Deepika ma'am, please. Go ahead. Don't wait for the time. Unmute yourself, Deepika ma'am, and then speak. I think we are facing some audio issue. Urvashi ma'am and Kiran ma'am have written the messages. Any one of you can just read it out. मुझे Anita नहीं ma'am पता is तो also गलती होगी. ready. Yes, Anita ma'am, please. Yes, you were not audible, ma'am. Were you trying to say? Yes, authors. Am I audible now? Yes, yes, ma'am. Yes, now you are audible. National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. Hmm. Yes, ma'am. That's very right. And the tagline, anyone? Tagline, तो I do not know. शिक्षा वो के किरण क्षेत्र की. में विकास राष्ट्र के लिए सबसे अहम विकास रोल होता है. अच्छा. इसीलिए शिक्षा के विकास के लिए को करने के लिए, जिससे कि देश का पूर्ण रूप से विकास हो सके, जी इसीलिए सर. इस निपुण भारत का नाम दिया गया है. बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा बताया आपने हमें. इसका लाइन, किरण मैम, नीड योर हेल्प हियर. जिसमें आधारभूत साक्षरता को, नंबर्स के लिए भी प्राइम मिनिस्टर का जो वर्ड नहीं था कि संख्या की जानकारी दी जाएगी, जी. ज्ञान हाँ. को बढ़ावा, ये भी जी. प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला, जी. उसी सेंटेंस को लेकर के ये रहा. जी. निपुण भारत दिया गया था. बिल्कुल सर, आप सबके सामने मैंने स्लाइड शेयर की है, विजिबल है वो. हाँ जी. जी. निपुण, दक्षता, किसी काम में निपुण होना. निपुण भारत का सपना
सब बच्चे समझें भाषा और गणना। मोनिका मैम ने भी अपनी एक लाइन दी है, अब हर बच्चा होगा शिक्षित, करेगा अपना सपना साकार। बहुत अच्छे, ये इनपुट्स एजुकेशन मिनिस्ट्री तक जरूर जाएंगे। आप देखेंगे अब आगे किसी का माइक अनम्यूट है। किरण मैम, आपका माइक हाँ अनम्यूट है। मैम, निपुण भारत ने हमारी भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है कि जी जिसमें कक्षा 3 तक बच्चों का जो उसका बेसिक ज्ञान है, चाहे वो उसका भाषा का हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उसका गणित का हो, जो उसका मिनिमम है ना, न्यूनतम, वो जी। बच्चा 60 से वो प्राप्त कर सके। एज ग्रुप क्या रखा है मैम, 3 से कितने साल तक? एज मैम ग्रुप में कक्षा 3 तक मैम, अभी तो इसके जो मैम 3 to उद्देश्य 9 थे। years. Yes, हाँ, Deepika ma'am कक्षा is 3 right. तक 3 to के। 3 9. to 9 years. As I said, that our primary wing is really equipped. They are acquainted. No, ma'am, now am I audible? Yes, you are audible now, and Shafi Okay, sir now that. has अच्छा मैम उस complimented टाइम in the नहीं मैं. message. Shafi sir, we need your contribution in audio as well. आप स्क्रीन पर भी आइए, अब आपको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इस इन जी जस्ट द मैम, मैसेज, जस्ट मैम। मैसेज में सिर्फ नहीं एनफ रहेगा सर। नहीं, I'll be definitely. Okay, internet issues are there, fine. So NEP, augmenting students' learning outcomes through FLN, is on your screen. As you can say, making foundational learning the highest priority, launching a national mission that has been done and achieving it in primary schools by 2026-27. Although the key areas have been discussed with the different stakeholders, why this the need was felt, because children who fall behind, they get left behind. So it's basically increasing the gross enrollment ratio as well, looking there as well, and achieving the three goals of foundational and literature, educational language, foundational language and literacy, and numeracy. So the details are here, that when it comes to foundational language and literacy, they are looking at oral language development, decoding, reading fluency, comprehension, writing. I'm not going into the details because time constraint is felt and we are still to cover few slides. Numeracy, again, the numbers, details in operations, measurements, their data handling. They have provided this. This is a government of India document about Nipun Bharat, which will be shared with all. You feel like you can read it at length. Now we'll move further to multilingualism, because that is the need of the hour. I can say a tested, tried sample of that. I am able to speak English. मैं हिंदी बोल सकती हूँ, और मुझे पंजाबी बहुत चंगी तो नहीं, बट वधिया भी नहीं, थोड़ी थोड़ी आंदी है. So I have studied Punjabi from class 4 onwards until class 8 only. But I am able to read it. मैं उसे अभी भी पढ़ पाती हूँ बिना किसी repetition के, बिना किसी exercise के. So definitely that concept is helping out. The features of multilingual teaching we are experiencing in our classrooms also. Ma'am, I would like to share one thing with this, Yes, in this sir. regard. Yes, sir. अभी कल के ही न्यूज़पेपर में एक अपडेट आया है कि जो सेकेंडरी स्टेज के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, उसमें क्लास 11 के लिए एक स्पेशल मेंशन है डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए. डिफरेंट लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट अलाउ किया जा रहा है. ये बात खास कल मतलब स्पेशली न्यूज़पेपर में हाईलाइटेड थी, और उसमें भी साउथ की जो लैंग्वेजेस हैं उनको प्राइम फोकस के साथ, के नॉर्थ में साउथ है, साउथ में नॉर्थ. हालांकि ये जो अभी त्रिपाठी सर बता रहे थे कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, उस टाइम पर भी इसके बारे में बात हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया. लेकिन ये अभी जब एनसीएफ बन रहा है फॉर सेकेंडरी स्टेज के लिए, उसमें ये एक की पॉइंट रखा जाएगा जिसमें मैक्सिमम लैंग्वेजेस को एज अ सब्जेक्ट इन्वॉल्व किया जाए फॉर सेकेंडरी क्लासेस. That's right. हाँ मैडम, एक ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बताऊं. एक जी जी नवोदय एक बिल्कुल ऐसा सर. इंस्टीट्यूट है जो जी कि इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है बड़े लंबे टाइम से. लगभग जो है 2000 या 2001 से इसको फॉलो कर रहा है. वहाँ पे ट्राई लैंग्वेज अभी भी चलती है. जैसे मैं गुजरात में था तो जैसे वहाँ पे गुजराती है, हिंदी है, और हरियाणा के बच्चे आते थे माइग्रेशन में,
तो 9th-10th क्लास में वो मतलब जैसे हरियाणवी वो मतलब लैंग्वेज जैसे नॉर्थ की एक लैंग्वेज वहाँ पे चलती थी, इंग्लिश जी हो गया और एक गुजराती हो गया और एक नॉर्थ की लैंग्वेज जैसे मान लीजिए हिंदी हो गई। तो इस जी तरीके से वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट शायद केवी हमारा बहुत ज्यादा इसको फॉलो नहीं कर पाया मेरे ख्याल से। तो हाँ ये फॉलो होगा, लेकिन अभी सबको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। वो तो केवी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है ना. इफ यू वांट टू स्टडी साउथ इंडियन लैंग्वेज, how do you expect जी that we can have the teachers for South Indian languages? There are so many यस South यस Indian languages. That is हाँ one बहुत of the सारे constraints, no, that KV cannot afford to. यस बहुत सारी प्रॉब्लम मैडम वो नवोदय में भी थी। जैसे हरियाणा में वहाँ के जो गुजरात के बच्चे आते थे, मान लीजिए करनाल में आते थे गुजरात के बच्चे, तो एक गुजराती टीचर वहाँ पे रखा जाता था और ऐसा नहीं परमानेंट टीचर था। तो ये तो रिक्रूटमेंट अभी वो लोग रिक्रूटमेंट करते हैं उनका ये तो जो अभी भी चलता है वहां पे, बच्चे हाँ जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। हाँ जी अभी भी चलता है सर, अभी बिल्कुल भी अभी चल भी रहा है। 9th क्लास में जाते हैं बट सर, वो सर हो 9th क्लास। सकता है वहाँ पे एक लैंग्वेज के ही स्टूडेंट्स हो, जैसे आप कह रहे हैं ना कि हरियाणा में गुजरात के हैं, गुजरात में हरियाणा के हैं, तो एक टीचर को लगाना तो नहीं बहुत मैडम, आसान है. कुछ दिन के लिए बच्चे जाते हैं, शिफ्ट होते हाँ हैं। नहीं वो पूरे पूरे साल के लिए जाते हैं सर। हाँ कुछ दिन नाइन्थ के लिए, मतलब नाइन्थ वही साल क्लास या जो भी हो। हाँ जी एक हाँ जी एक सर। एक स्कूल से दूसरे स्टेट में जाते हैं और हाँ वहाँ एक वो स्टेट एक से साल या 6 महीने जो भी है वो पढ़ते हैं पूरा और फिर पूरा अपने साल सर, स्कूल में आ पूरा जाते 6 महीने नहीं सर, पूरा साल जाते हैं हैं। और अच्छा वो अच्छा। पूरा 9th क्लास का सर्टिफिकेट लेकर ही आएंगे हाँ अच्छा, वहां ये है। से, हाँ, तो पूरा अभी भी है, साल रहेंगे। हाँ अभी भी है जी वो सिस्टम। अभी भी सिस्टम है सर वहाँ पे, वो फॉलो कर रहे हैं इस चीज को। That's very good. It just happens with multilingualism. यस और थैंक यू मल्टीलिंग्वेजम ऑल। के बारे में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है एनईपी में, मल्टीलिंग्वेलिज्म इज द एसेट ऑफ आवर सोसाइटी। ये एसेट है एक, और मतलब एसेट मतलब धरोहर है हमारी, क्योंकि पहले वर्नाकुलर लैंग्वेज जो चलती थी वो अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। लॉर्ड मैकाले ने वर्नाकुलर लैंग्वेज को खत्म किया था। उन्होंने अगर वो ये एक क्योंकि उनको क्लर्क चाहिए थे, सोल्जर्स चाहिए थे, तो उन्होंने सबसे भारत में पहला अगर ये अटैक लागू कर वर्नाकुलर दिया जाए, लैंग्वेज पे ही किया था सर। तो भारत में लागू कर दिया जाए तो ये जो डिसयूनिटी फैल रही है ये कम हो जाएगा। जी वर्नाकुलर लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट एसेट है सर हमारा, और अगर ये वापस से इम्प्लीमेंट हो जाए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन जैसे अनीता मैडम अभी कह रही हैं कि भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें होंगी, टीचर्स को रिक्रूट भी करना पड़ेगा, और बच्चा अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो मान लीजिए नॉर्थ इंडियन बच्चा साउथ में जा रहा है और उसको कहा जाए कि आप साउथ इंडियन लैंग्वेज पढ़े, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो बहुत सारी प्रैक्टिकल इश्यूज इसमें आएंगे, वो आने ही है सर। दूसरा इन्होंने अटैक किया था हमारा जो वोकेशनल सिस्टम है, अंग्रेजों ने उसको खत्म किया था। तो यस। वोकेशनल सिस्टम वो अभी तक हम लागू नहीं कर पाए, बड़ा उसकी बात है। इतने सारे कमीशन और पॉलिसी बन चुकी हैं, लेकिन वापस से हाँ जी Sorry, जी sir. जी वो I would interrupt. I'm sorry to interrupt here. Let's यस keep our focus on multilingualism right now. We'll यस come to यस that next thing because everybody is keeping tab of timeline as well. So, see, these slides will be shared with you. These are actually the 12 courses that's been offered by Nishtha 3.0. That's been already, I believe, attempted by all the primary teachers. And what's there in for us to learn is that what all is going on at the foundational level and how we can contribute as a stakeholder for secondary sections and just put our inputs on the government side and write to the education department accordingly, the heads, so that whatever are the concerns are, they can be addressed timely. So as we can see, the summary here before us, that multilingual language, we know that what is multilingual, using languages more than our मदर टंग में वी आर मोस्ट कंफर्टेबल, हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। हमने अपने स्कूल में भी देखा है, बहुत बॉन्डिंग है हमारे बच्चों के साथ, उसके बेनिफिट्स भी होते हैं। बट येस, द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग हैज़ टू इम्प्रूव ओवर द middle classes and over the secondary classes, senior secondary classes. That has to be a strong foundation for other languages as well. So that needs to be also looked after. Now, basically, this concept has to be strengthened at the core level. So they are talking about why, what is the importance of doing this, and what are the provisions in the education. The acts are there, there are strategies, and coming to strategies, it is mentioned that we accept and encourage the participation in the mixed language. So we have a video about it.
that will help you, but I think that will be a little over 10 minutes. I believe it will be worth watching if you can give another extra 5-10 minutes to the workshop. So ma'am, can we have the video please? In the meantime, the slide is there with you. I'll also be sharing these with you. You can just go through them in detail, read all these documents. Want to know a secret to unlocking your child's potential? Adaptive Mind, an online academy that grows with your kids. Can children's home languages help them in learning other languages? Most of us believe that if children's languages are used extensively in the classroom, it might interfere with the learning of the state language or English, or that children will not get adequate time to learn other languages. These are all misconceptions. In fact, scientific research tells us that a strong foundation in their familiar language helps children build mastery over other languages. To present this research-based reality, I would like to show you a video. Through this video, you will be able to understand how learning a familiar language well helps the children in the process of learning other languages too. Let's watch this video together. बच्चों की भाषा उन्हें दूसरी भाषा सीखने में कैसे मदद करती है कि ई-लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। अरे क्या तुमने यह न्यूज़ देखी? जिले के स्कूल में कुछ बच्चों को अपनी मातृभाषा में बात करने की सजा मिली। सजा ऐसी भी सुनकर और देखकर आपका दिल पसीज उठेगा। जरा देखिए इन मासूमों को किस तरह जलील किया गया। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने आपस में तेलुगु में बात की, जो इनकी मातृभाषा है। स्कूल प्रबंधन ने इन मासूमों को सबक सिखाने के लिए जो तरीका अपनाया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देखिए किस तरह इन दोनों बच्चों के गले में तख्ती लटका दी गई है, जिस पर लिखा है कि आई विल नेवर स्पीक तेलुगु, यानी अब मैं तेलुगु में कभी नहीं बोलूंगा। मुझे तो यह न्यूज़ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत दुख हुआ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, यह तरीका तो बिल्कुल गलत है, लेकिन मेरे ख्याल से यह करना भी ज़रूरी है, नहीं तो यह बच्चे अंग्रेज़ी कैसे सीखेंगे। मैं भी अपनी कक्षा में बच्चों को वागड़ी में बिल्कुल बात नहीं करने देती। हाँ, पर ऐसे सजा नहीं देती, मैं बस उनको बोलती हूँ कि हिंदी में ही बात करें। वागड़ी स्कूल में बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर पूरे टाइम अपनी ही भाषा बोलते रहेंगे तो हिंदी या अंग्रेज़ी कब सीखेंगे भला? वह भी तो ज़रूरी है कि नहीं? मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। यह तो बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही आनी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर एक गलतफहमी है जिस पर मैं चाहती हूँ कि तुम ध्यान दो, और वो ये है कि हम लोगों को लगता है कि हम जितनी जल्दी बच्चों को दूसरी भाषा में पढ़ाने लग जाएंगे और जितना ज्यादा मातृभाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाएंगे, बच्चे उतनी ही बेहतर रूप से दूसरी भाषाओं को सीख पाएंगे। पर होता उल्टा है, ना बच्चे अपनी भाषा में निपुण हो पाते हैं और ना ही दूसरी भाषा सीख पाते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ऐसे सोचना ठीक नहीं है। ऐसे कैसे? भला मातृभाषा का दूसरी भाषाओं से क्या संबंध? और वैसे भी अगर हमारा दिमाग पूरी ताकत और समय मातृभाषा में लगा देगा तो दूसरी भाषाओं के लिए दिमाग में जगह कहाँ बचेगी? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसमें माना जाता है कि मानव मस्तिष्क में अलग अलग भाषाएं अलग अलग गुब्बारों की तरह अपनी जगह बनाती हैं, और यदि मातृभाषा का गुब्बारा बड़ा हो गया तो अन्य भाषाओं के लिए जगह नहीं बचेगी। मतलब यदि बच्चों की घर की भाषा में लंबे समय तक सीखने सिखाने का काम किया गया तो हिंदी या अंग्रेजी सीखने का समय नहीं बचेगा और बच्चों का नुकसान होगा। यह मान्यता पूरी तरह से गलत है। बच्चों के घर की भाषा के लिए मस्तिष्क में ज्यादा जगह और कक्षा में समय देने से अन्य भाषाओं के लिए मस्तिष्क में जगह कम रह जाती है।
दरअसल भाषा से जुड़े ऐसे बहुत से कौशल हैं जो अलग अलग भाषाओं में भी एक समान ही होते हैं, और यदि वे मातृभाषा में ठीक प्रकार से विकसित हो जाते हैं तो अन्य भाषाओं पर भी पकड़ बनाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। अच्छा, मुझे तो यह बात मालूम ही नहीं थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये कौन से कौशल हैं जो अलग अलग भाषाओं में भी एक समान ही होते हैं और एक भाषा में सीखने पर दूसरी भाषा में भी मदद करते हैं? बिल्कुल, चलो अपने LLF के YouTube चैनल पर एक वीडियो देखते हैं, उससे तुम्हें यह बात समझने में बहुत मदद मिलेगी। Data science and analytics are not the trends of the future. They're happening right now. So having the skills to work with data is not only valuable, it is essential. इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि बच्चों की मातृभाषा उन्हें अन्य भाषाएं सीखने में कैसे मदद करती है। साझा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत जिम कमिंग्स द्वारा दिया गया है। ऊपरी तौर पर तो सभी भाषाएं एक दूसरे से बहुत अलग दिखाई देती हैं। ये अंतर शब्द भंडार, वाक्यों की बनावट, व्याकरण और बोलने के तरीके या लहजे में नजर आते हैं। ये अंतर हमें बच्चों की मातृभाषा और स्कूल की भाषा में भी दिखाई देता है। पर जैसे कि हमें पता है कि भाषा सिर्फ बोलने और सुनने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और सीखने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि सोचने समझने से जुड़े ऐसे बहुत से कौशल या क्षमताएं हैं जो अलग अलग भाषाओं में भी एक जैसी ही होती है। ऐसे साझा कौशलों या क्षमताओं को साझा अंतर्निहित निपुणता के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं ये कौन कौन से कौशल हैं जो एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरित होते हैं। अवधारणात्मक ज्ञान, पढ़ने लिखने से संबंधित कौशल, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। यदि बच्चों ने अपनी भाषा में किसी अवधारणा को सीख लिया है तो उन्हें हिंदी या अंग्रेजी में दोबारा सीखना नहीं पड़ता। उन्हें केवल नई भाषा में उसे क्या कहते हैं ये जानना भर होता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चों को पहले से अपनी भाषा में बरगद के पेड़ के बारे में मालूम हो तो उन्हें हिंदी भाषा में बरगद के पेड़ के रूप, रंग और उसकी विशेषताओं के बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें केवल ये बताने की जरूरत होगी कि जिसे तुम अपनी भाषा छत्तीसगढ़ी में बररुख कहते हो उसे ही हिंदी में बरगद पेड़ कहते हैं। अर्थात उन्हें केवल उसके नाम भर को बताने की जरूरत होगी। फिर वे उसके संबंध में अपनी भाषा में ज्ञात और अर्जित किए गए सारे ज्ञान को उस नाम के साथ दूसरी भाषा में ट्रांसफर कर लेंगे। पढ़ने लिखने से संबंधित भी कई ऐसे कौशल हैं जो एक बार ही सीखने पड़ते हैं, अलग अलग भाषाओं में बार बार नहीं। और ये सभी कौशल अपनी परिचित या मजबूत भाषा में ही सबसे अच्छी तरह से सीखे जा सकते हैं, ऐसा तमाम शोध बताते हैं। मातृभाषा में इन्हें सीख लेने पर दूसरी भाषा में इन्हें सीखना बहुत सरल हो जाता है। ये कौशल हैं ध्वनि जागरूकता, ध्वनियों और अक्षरों के संबंध को समझना, विराम चिन्हों की समझ, बाएं से दाएं की ओर पढ़ना, लेखों या पाठों के विभिन्न प्रकारों की समझ होना, संदर्भ से अनुमान लगाना। ध्वनि जागरूकता का मतलब है ये समझना कि वाक्यों में कई शब्द होते हैं और हर शब्द अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बना होता है। यदि बच्चे अपनी भाषा के शब्दों की ध्वनियों को जोड़ व तोड़ लेते हैं तो हिंदी या अंग्रेजी भाषाओं में ये करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। आज मैं ह खेले बर जाहू, आज मैं ह खेले बर जाहूं। ध्वनियों और अक्षरों के संबंध को समझना मतलब ये समझना है कि हर ध्वनि का एक चिन्ह या अक्षर होता है। जैसे प ध्वनि को हम हिंदी में प से दिखाते हैं, आपकी भाषा में उसे कैसे दिखाते होंगे?
विराम चिन्हों की समझ का मतलब ये समझना कि हर भाषा में वाक्य होते हैं जो पूर्ण विराम या किसी अन्य चिन्ह के साथ खत्म होते हैं। अंग्रेजी भाषा में कैसे मालूम पड़ता है कि वाक्य खत्म हो गया? बाएं से दाएं पढ़ना का मतलब ये समझ विकसित होना है कि किसी भी पाठ को बाएं से दाएं की ओर पढ़ा या लिखा जाता है, और ये आत्मसात कर लेना कि पढ़ने या लिखने के दौरान हमारी उंगलियां और आंखें बाएं से दाएं की ओर जाती हैं। क्या आप किसी ऐसी भाषा के बारे में जानते हैं जो इससे अलग तरह से पढ़ी और लिखी जाती हो? लेखों या पाठों के विभिन्न प्रकारों की समझ का मतलब ये समझ पाना है कि भाषा कोई भी हो, उसमें बात को कहने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। निबंध, सूचनात्मक लेख, पोस्टर, समाचार, आर्टिकल आदि। उनकी लेखन शैली को ध्यान में रखते हुए उस पाठ का अर्थ समझना एक ऐसा कौशल है जो आसानी से एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरित हो जाता है। संदर्भ से अनुमान लगाना का मतलब ये समझ पाना कि कहानी के कवर पेज या नाम से कहानी में क्या होगा उसका अनुमान लगाया जा सकता है, या आसपास दिए हुए चित्रों या आसपास के वाक्यों से किसी शब्द के अर्थ का अनुमान लगाया जा सकता है। ये अनुमान आप अलग अलग भाषाओं में भी एक ही तरीके से लगाते हैं। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल भाषा के साझा कौशलों में ये सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। ये मुख्यतः पाठ आधारित समझ और सोच विचार से जुड़े कौशल हैं, जो एक बार आपने अपनी मातृभाषा में अच्छे से सीख लिए तो दूसरी भाषा में ये बहुत सरलता से प्रयोग किए जा सकते हैं। आपको नई भाषा में केवल उस भाषा के शब्द सीखने होंगे, सोच विचार के कौशल सिरे से नहीं सीखने होंगे। आइए इनको समझें। किसी पढ़ी या सुनी हुई कहानी या लेख के मुख्य विचार को बता पाना, किसी पाठ का सारांश बता पाना, पात्रों, वस्तुओं या घटनाओं में समानता और अंतर खोज पाना। जैसे दिए गए चित्रों में बच्चे आपस में चर्चा करते हुए अंतर खोज रहे हैं। किसी विषय पर तर्क वितर्क कर पाना और कारण सहित अपना पक्ष रख पाना। ये सभी कौशल यदि अपनी मजबूत भाषा में भली प्रकार से सीख लिए जाते हैं तो दूसरी भाषा में सीखने के लिए एक मजबूत नींव का काम करते हैं, क्योंकि दूसरी भाषा के शब्द भले ही अलग हों, पर उस भाषा में भी किसी विषय के बारे में सोचने समझने का तरीका वैसा ही रहता है और जड़ से नहीं सीखना पड़ता। वाह, मैंने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि मातृभाषा दरअसल दूसरी भाषा सीखने में अवरोध का नहीं बल्कि एक मजबूत नींव का काम करती है। ये वीडियो देखकर तो मुझे लग रहा है कि मातृभाषा एक पुल के समान है जिसको इस्तेमाल किए बिना बच्चे दूसरी भाषा सीख ही नहीं सकते। क्या खूब कही, बहुत बढ़िया। वैसे अब तुम अपनी कक्षा में कोई नियम बदलने वाली हो या नहीं? अरे बिल्कुल, वागड़ी ना इस्तेमाल करने का नियम अब कक्षा के बाहर। अब तो बच्चों को मैं उनकी भाषा में चर्चा करने से, चाहे व्यक्तिगत हो या अकादमिक, बिल्कुल नहीं रोकूंगी। किसी भी नई अवधारणा पर या कोई भी उच्च स्तरीय चिंतन का काम वागड़ी से ही शुरू करूंगी, जैसे पाठ का सार बताना या अपनी राय देना, और उसके बाद ही हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ाऊंगी। बच्चों की मातृभाषा दूसरी भाषाओं की नींव जो ठहरी, पर हाँ, हिंदी या अंग्रेजी सिखाने का काम अलग से भी जारी रखूंगी। उनका शब्द भंडार भी तो बढ़ाना होगा। हो सके तो इस पर भी कभी कोई वीडियो दिखाना, और ये वीडियो दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर दिखाऊंगी, मुझे खुशी होगी। चलिए अब कक्षा में चलते हैं।
So everyone, I think it was time taking, but there was something to gain there. Foundational level per the onus lies on the primary department that they have to really work hard for bringing up all kind of strategies that the child whosoever where he or she is comfortable in mother tongue, but also learn the second language. The strategies are before you in a PPT, and more than me, you are well acquainted now with the different strategies, and you devise your own strategies as well. Moving on to what they are expecting from the teachers, the role of teachers in their capacity building in for their own self, how they are able to contribute here. They are actually looking at us to be a pedagogical leader. They want to achieve all these objectives of foundational literacy. They want you to understand the learner, how the children learn. I will share the PPT again, and you can go through all these activity interest areas for secondary and senior secondary. Also, I would request, because primary has already gone through, it's more of a revision thing for them. Then they want the children to be active and autonomous learners. They should be confident, inventive, innovative, reflective, take initiative, inquisitive. We all have been doing. I know how Anita ma'am keeps taking her debate sessions in the classes time and again, and we keep on discussing things. Even Seema ma'am shared day before yesterday the puppetry session. Hindi classes, it is going on. Sanskrit is going on. I can recall the Sanskrit morning assembly till date. Toy based pedagogy course we all also have done in secondary nishtha courses, and there are different ways which we devise here and there. So there is a summary of FLN here. The parents role is also important here, because their contribution is very important. They are to, when the child is saying that it's my education and it's all about me, why not my language, and the parents need to be involved all together with that. Now कमिंग टू द कंक्लूडिंग पार्ट, भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में परिलक्षित है कि वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इसी के अंतर्गत बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन का भी उल्लेख है। 3 language formula with greater flexibility, and no language will be imposed on the state. KVS is already working on this. There are certain programs going on. Scientific studies says that we are able to give confidence to the child. We are able to connect with the child with the prior knowledge. It infuses self-esteem, self-confidence with the mother tongue, and they are expecting us to be pedagogical leaders. And school must accord the children with exposure, free will, and experimentation. So coming to just a few inputs from my side, otherwise we can keep a lot of wall room activity if it is permitted by our heads. Then we can revisit the recorded sessions for better performance next time and recap the learning. Send Hindi audio messages to promote Jan Bhagidari to parents. It will help share your burden. You can impress upon the learning new word activity in every subject notebook. That is what one of my take is, that on a daily basis it will be a cross curriculum learning. Other subject teachers also can take it up. It will be wonderful. You will also be acquainted with a new word when you will go to a classroom. Maybe you are not aware of it, and if the child is writing in your register as well, maybe while checking the work we can go through that. We can focus on proverbs and idioms via enactment and puppetry. The low cost do it yourself kits can be suggested to parents for birthday gifts for all the classes. To middle classes, the community work done by, like, involvement, the work done during activities by middle section students or secondary students can be shared with the primary ones. If it is feasible willingly, we can suggest parents to go on excursions, that rather simply idling away time in mall or wasting, we can, and we all have been doing it already, that can be done, that they can go to places where children can learn, and that sense can be brought by asking for donating old toys. Maybe you can keep your own CMP material which you have been doing already. Some indigenous toys from other states like Katputli
can be included in your CMP material, and more you can come up with, and you can name up your toy box as a Jadui Pitara or something. Yes, Neeraj sir, you want to add something, sir? Sir, you have raised a hand. Okay, already COVID has shunned a lot of activities in the children, but we have learned a lot, and we are trying to bring the same learning back to school. So once school reopens, we will all be sharing this joy of learning once again. And I take the opportunity to heartfelt thanks to Principal Sir for his encouraging vision and support, to Vice Principal Sir for his welcoming and wise support again, and all the members of the KV Pitampura teaching fraternity. You all set an exemplary example of fine teamwork. So we all are already working well towards continuously achieving our goals. I hope I did some justice in today's assignment, and making a humble submission. Heartily accept both appreciation and criticism. So that is all from my side. Anything if you would like to add, please go ahead. There is a quiz link for FL1 again that can be. Nicely conducted session, Mr.